I welcome everyone to this another episode of Read with Students. And this time we are here at SKV Ayanagar. And with me, there are some wonderful students from this school, and teachers, and of course, friends from across Delhi have joined. And some of you will perhaps watch it later. So, welcome all of you to this episode of Read with Students. And as you can see on the poster, we are going to discuss one of the finest, inspiring personality of modern India, Swami Vivekananda. The purpose of Read with Students is actually to inspire students to delve deeper the journey that shapes their life, and they continue reading, cultivate the love of reading. And we have witnessed it very closely that this journey has been phenomenal for the students. So today, get ready to be amazed by another session of Read the Students, where we have students from SKV Ayanagar, for some of the finest students I have ever come across. And they will speak and appreciate them, try to understand what they are arguing. And here we come on the conversation about the books. So in the very beginning, I would like to just set a kind of a background for the book, uh, how we choose the book, how we introduce this kind of book to the students. Again, the idea is that what inspires, what can be more inspiring for the students. So far we have studied the biography of Kalam Sahab, Mahatma Gandhi. We also read a book from Prem Chand, and from several different writers. So this time it's Swami Vivekananda and his biography that we are going to read. And the book is basically talking about the life. There are several different set of biography available, but the one that we are reading is written by Nikhilanand. And of course, at different point of time, we have been reading, seeking inspiration from the life of Vivekananda. This is the time when we'll get some different aspects of his life, which will be very amazing for us to know, because several times we also get confused with uh, misconceptions and other ideas. Like one example, I would like to share that earlier when I didn't read this book, we used to know that because of the extraordinary power Swami Ji had when he was traveling from India to the United States, suddenly he started speaking English. But when I read this book, he was a brilliant student, students of Western English literature when he was studying at Presidency College. So, like several other students. So, the book has been written beautifully in different segments, talking about his childhood, uh, then his wandering life as a monk, his travel to United States, the famous world religious parliament, and when he returned to India again. So all these aspects we'll cover with the students. So now we have the students. I am actually inviting them to speak, share with us. They have read through the book, and so I would like to know. हम लोग हिंदी में भी बातचीत करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कि कैसा लगा, हाउ वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन, आई मीन व्हेन यू केम टू नो कि विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना है, एंड सो और उनके अर्ली लाइफ के बारे में जान करके समथिंग व्हिच यू फाइंड सो फैसिनेटिंग कि अरे ये जान करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था पहले से. सो एनी वन ऑफ यू अनम्यूट एंड लाइक स्पीक. या Sakshi, let's start from you. हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज साक्षी. जब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा, बेसिकली ही इज अ यूथ लीडर, तो एक बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे आंखों के आगे जो है यूथ लीडर के बारे में एक बहुत ही ब्यूटीफुल विजन आया, जिससे कि हमने जाना, सीखा, बहुत कुछ समझा उनकी लाइफ से. मतलब उनके पास कुछ करने का, कुछ समझने के लिए, या फिर वो वर्ल्ड को दिखाना चाहते थे कि वो एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है. उनके अंदर बचपन से ही एक बहुत ही ज्यादा वो
बहुत ही ज्यादा पावर था, और उन्होंने उसको जो है अलग अलग एक्सपेक्ट्स के लाइफ से रिलेट किया। बेसिकली उनका जो मोटिव था वो था गॉड को पाना, एंड गॉड को पाने के लिए उन्हें डायरेक्ट पाथ मिला जो कि था सर्विस टू द पीपल। उन्होंने अपने आप को पूरे लाइफ भर उन्होंने अपने आप को जो है सर्विस में एंगेज करके रखा। वो बहुत सारे लोगों से जिंदगी में मिलते रहे, उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की और बहुत अच्छी अच्छी सीख दी। उन्हें जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी वो थी कास्टिज्म। उनके मन में कहीं ना कहीं था कि वो इंडिया से जो कास्टिज्म है उसको रिमूव करें, एंड इंडिया को जो है रिलीजियसली बहुत ही ज्यादा डेवलप करे, एक वेल्दी इंडिया जो कि स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ हो, सबके अंदर ह्यूमैनिटी हो, इस चीज का विकास करे। तो दैट वाज वेरी ग्रेट इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू। फैंटास्टिक। कितना हम लोग बातचीत कर रहे थे इससे पहले भी कि जब तुम लोगों से मिला और बातचीत किया तो ऐसा लगता है कि हम तुम्हें ही सुनते रहे। तो क्या ब्यूटीफुली यू हैव पुट इट। दो चीजों पे तुमने बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी यहाँ। एक की उनके लिए जो धर्म है दैट इज द सर्विस टू पीपल, दैट इज समथिंग सो फैसिनेटिंग अबाउट हिज एंटायर टीचिंग, राइट। और दूसरी जो बात बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यू ऑल्सो रेफर टू हिज चाइल्डहुड, कि बचपन में कैसे थे। तो इस बारे में हमें अब कौन बताने वाला है कि बचपन में कैसे थे? क्या हमें बचपन से ही कुछ पता चलने चलने लगता है कि ये जो पर्सन है इनका जो लाइफ है वो बहुत अलग होने वाला है? कुछ उनकी बचपन की कहानियां अगर हमें जानने को मिले तो लोग भी एक बचपन के एक फेज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो हु इज गोइंग टू शेयर विद अस उनकी बचपन की कहानियां? सर, आई वांट टू शेयर वन स्टोरी। अच्छा, सुनाओ सुनाओ। मतलब जैसे कि हमने बोला कि स्वामी जी जो है बचपन से ही कास्टिज्म को रिमूव करना चाहते थे इंडिया में। इंडिया में उनको सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो दिखाई दी वो कास्टिज्म थी। तो ही वॉज ओनली 8 ईयर ओल्ड, और उनके फादर जो थे वो एक एडवोकेट थे। तो वो उनको एक साथ एक दिन जो है वो अपने साथ कोर्ट में लेके गए स्वामी विवेकानंद जी को। उन्होंने एक चीज एक्सपीरियंस की कि कोर्ट जो है वो दो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड है, एक था हिंदू का सेगमेंट एंड दूसरा था मुस्लिम का सेगमेंट। एंड दोनों जगह जो था वो एक टोबैको पाइप रखा गया था जो हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग था। एट द एज ऑफ 8 ईयर उन्होंने जो है उन दोनों टोबैको पाइप में से जो है टेस्ट किया, जिस पर उनके फादर ने उनको बहुत ही ज्यादा डांटा। एंड उन्होंने अपने फादर से सेम क्वेश्चन किया कि जब मैंने इसको टेस्ट किया तब तो मुझे कुछ डिफरेंट नहीं दिखाई दिया, तो ये दोनों अलग अलग पाइप क्यों रखे गए हैं दो अलग अलग सेम पीपल के लिए जो कि हमारे ही बनाए गए कास्ट से बिलोंग करते हैं। So that was very fascinating about him. दैट्स फैंटास्टिक। आई मीन कितना ब्यूटीफुली तुम इमेजिन करो वो आज से करीब करीब 120-30 साल पहले का जो समाज था। 1863 में पैदा हुए थे और मान के चलो मुझे लगता है 1875 के आसपास का यह घटना होगा। उस समाज में हम आज भी देखते हैं कि कास्टिज्म के बहुत सारे जो एविडेंसेस है हमें यहाँ वहाँ के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन करीब करीब 120-30 साल पहले के समाज में वो इस तरीके का सवाल उठा रहे थे जाति प्रथा को लेकर के, अपने इतने इनोसेंट तरीके से। वो कितना कितना कमाल का था। ऐसी बहुत सारी कहानियां उनके बचपन से जुड़ी हुई है जो बहुत कमाल की है। एंड हमें कई बार लगता है कि जब हम किसी ऐसे बहुत शानदार व्यक्ति की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो वी फील उनका लाइफ शुरुआत से ही महान रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बचपन बचपन होता है ना। एक कहानी मुझे याद आ रही है इसी बायोग्राफी से कि एक बार वो गाली बकते थे अपने दोस्तों से, झगड़ा करते हुए। इसमें मेंशन किया गया है एक बार मम्मी को बहुत बुरी बात कह दी लड़ाई करते हुए। कई बार बच्चे कह देते हैं राइट। तो उनके पापा ने उनको ठीक करने के लिए क्या कहा कि गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर उन शब्दों को, जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसको लिख दिया, राइट। सो दैट जब उनके फ्रेंड्स आए तो वो देखे कि विवेकानंद ने, जो उस वक्त नरेंद्र दत्त थे, उन्होंने क्या अपनी मम्मी को कहा है। तो इस तरीके से जैसे मम्मी पापा लोग करते हैं, तमाम उपाय करते रहते हैं अपने बच्चे को ठीक करने का। तो दैट वाज समथिंग आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन अगर कुछ लक्षण ऐसे होते हैं which seem different, लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम सब रिलेट कर सकते हैं। वैसे ही बदमाशी करना, गाली गलौज करना, लड़ाई करना, राइट। सो बट
देयर वर सर्टेन थिंग्स, कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो पहले से ही दिखाता था कि वो बहुत अलग थे। खास करके एक, अगर तुम में से कोई शेयर करना चाहोगे कि सन्यासियों के प्रति जो उनका एक खिंचाव था, है ना, बचपन से ही, कौन बताना चाहेगा, बताओ अगर तुम्हें याद आ रहा हो। एनी वन ऑफ यू, अनम्यूट करो और शेयर करो। और एनी अदर स्टोरीज फ्रॉम द चाइल्डहुड, फिर हम उनके अगले वाले हिस्से पे चलेंगे। सर उनके चाइल्डहुड की एक मैं शेयर हाँ। करना चाहती हूँ जी कि जी। उनका जो चाइल्डहुड था उसके ऊपर उनकी मदर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था जो वो फील करते थे, क्योंकि उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो भी उनकी मदर ने ही उनको दी। बाद में स्कूलिंग हुई, और स्कूलिंग के टाइम पे जब उनको एक बार वहां पे किसी बच्चे से कोई अपशब्द उन्होंने सुन लिया, तो उन्होंने घर आके वो अपने फादर को बताया। तो उनके फादर ने कहा कि नहीं, अब स्कूलिंग नहीं होगी प्रॉपर और घर में ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने बाकी स्टडीज अपने घर पे ही की। लेकिन एक इंसिडेंट जिसने मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेरे को अट्रैक्ट किया, या जो मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत मतलब मेरी लाइफ से भी रिलेट करता है, तो उसमें क्या था कि उन्होंने जब घर आके अपनी मदर को बताया कि मुझे इस तरह से फील हुआ, स्कूल में बहुत बुरा लगा, तो उनकी मदर ने फिर उनको बहुत अच्छे से समझाया। और मैंने इसमें से एक पैराग्राफ भी चूज किया है जिसको कि मैं रीड करना चाहूंगी। हाँ, जरूर जरूर, करिए करिए करिए। The mother Bhuvneshwari played her part in bringing out Narendranath's innate virtues. When he told her one day of having been unjustly treated in school, she said to him in consolation, "My child, what does it matter if you are in the right? Always follow the truth without caring about the result. Very often you may have to suffer injustice or unpleasant consequences for holding to the truth. But you must not, under any circumstances, abandon it." Many years later, Narendranath proudly said to an audience, "I am indebted to my mother for whatever knowledge I have acquired." तो यानी कि उन्होंने अपनी मदर से इस तरह के नॉलेज ली जो कि फ्यूचर में उनकी लाइफ लॉन्ग उनके साथ रही। और उन्होंने उसे समझाया कि अगर आप जस्टिस के साथ हैं, आप ठीक हैं, तो आपको किसी भी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह की सभी जो हमारे स्टूडेंट्स में और हम लोगों में भी, हमारी मदर्स ने भी इसी तरह की क्वालिटीज इनकलकेट की हैं जिनसे कि हम अपने फ्यूचर को और अच्छी सीख के साथ बेटर ले जा सकते हैं। तो आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया इस चीज ने, और दैट वाज द ग्रेट पार्ट फॉर मी इन द बुक। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। जी जी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा देखिए, चेक कीजिए। एक इंसिडेंट में शेयर करना चाहूंगी उनके बचपन की, कि बचपन में वो कितने ब्रेव थे और छोटी एज में भी बहुत ज्यादा थी। एक बार जब वो एक व्यायामशाला में एक जाल लगा रहे थे, तो वहां पर उन्होंने उस जाल को लगाने के लिए कुछ लोगों से मदद मांगी, और जिसमें उन्होंने एक अंग्रेज नाविक को भी इंक्लूड किया। और जब जाल गिर गया तो उसके कारण नाविक बेहोश हो गया। तो वहां जितने लोग भी आसपास थे वो सब डर गए। उन्हें लगा कि शायद उस नाविक की मृत्यु हो चुकी है, और वो उसे छोड़कर पुलिस के डर से वहां से भाग गए। लेकिन नरेंद्र ने और एक हफ्ते तक उसकी देखरेख की ताकि उसका उपचार किया जाए। तो सेवा की जो भावना थी वो बहुत ही ज्यादा थी। तो मुझे ये बात उनकी बहुत इस बात ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, क्योंकि बचपन से ही जिस इंसान के मन में दूसरों के लिए इतनी ज्यादा दया की भावना थी, वही इंसान इस देश के लिए कुछ आगे कर सकता था। इसी तरह उनके बचपन की एक और घटना थी जिसमें उन्होंने अपने कपड़े तक निकाल के एक सन्यासी जब उनके घर पर आता है तो उन्हें दे दिए, और उनके माता पिता ने उन्हें कमरे में लॉक कर दिया करते थे कि जब भी कोई सन्यासी आता था उन्हें लगता था कि ये घर से सामान उठाकर दे देंगे। तो इतना दया भाव होना ये उनके बचपन में ही हमें दिखाई दिया। उनकी इस बात ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। बहुत खूबसूरत, काफी अच्छे से। आई मीन हमारा जो ये सेशन है ट्रूली इट्स अ रीड विद स्टूडेंट्स, तो हम टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके बच्चों के साथ पढ़ते हैं। और देखिए कितनी बखूबी तरीके से हमारे दो टीचर साथियों ने, जिन्होंने इन बच्चों के साथ मिलके इस किताब को पढ़ा है, वो भी शेयरिंग कर रहे हैं। तो हमने विवेकानंद जी के बचपन से बोथ द साइड, आई मीन एक नॉर्मल बचपन जैसा होता है, बदमाशियां भी होती है, गाली गलौज भी होता है,
और कुछ अचीवमेंट्स भी होता है अलग तरीके का। ये तमाम ऐसी कहानियां उनके बचपन से भी जुड़ा हुआ था। थोड़ा सा हम यूथ की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज मैं और जिक्र करना चाहूंगा, ऐसा मुझे लगता है कि जो पेरेंटल बैकग्राउंड होता है उसका काफी डीप इन्फ्लुएंस होता है। तो मदर का जिक्र आया, उससे वो बहुत प्रभावित। Sir, I want to say something. कम टू यू। अपने बाप के प्राची म्यूट कर लो तुम। हाँ, अपने बाप के कई भाषणों में वो इसका जिक्र भी करते हैं कि आज मुझे जो कुछ भी आता है वो अपनी मदर की वजह से आता है। तो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। फादर का भी बहुत शानदार रोल रहा। एंड दादा जो थे दुर्गा चरण दास, वो भी बहुत ही विख्यात थे और बाद में सन्यासी हो गए थे वो। हालांकि पिताजी वर्ल्डली पर्सन थे। तो इस तरीके का एक बहुत ही मिक्स्ड और रिच कल्चरल बैकग्राउंड उनको मिला था, सोशल बैकग्राउंड उन्हें मिला था। घर में जो है बांग्ला, अंग्रेजी, पर्शियन, ये तमाम भाषाएं बोली जाती थी। तो एक जबरदस्त एक्सपोजर उनके पास था। प्राची, तुम कुछ कहना चाह रही हो? या अनम्यूट कर लो। सर, मैं आपको नरेंद्र नाथ जी के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में फिर और बताना चाहती थी। जैसे आपने बोला था कि अभी इनके जो स्पिरिचुअल वाली चीजें थी वो इनके बचपन में कैसे, इनको मतलब हमें इंडिकेशन कैसे मिला कि जो नरेंद्र नाथ जी थे ये बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही थी। तो एक इंसिडेंट इनके साथ हुआ था कि इनको हर रात को अपने सपने में सोने से पहले एक ड्रीम दिखाई देता था। वो ड्रीम इस टाइप का था कि इनको हमेशा मतलब अपनी आंखें जब ये बंद करते थे तो इनको एक लाइट बॉल दिखाई देती थी जो कि अलग अलग रंग में जलती थी, और इनको ऐसा लगता था कि वो बॉल जो है वो इनके बहुत ही पास आई जा रही है, वो बहुत ही पास आई जा रही है और बाद में बर्स्ट हो जाती है। तो उनको हर दिन ऐसे ही सपने आ रहे थे। तो एक बार जब इनके गुरु थे, उन्होंने इनके साथ शेयर किया तो उन्होंने बताया इनको कि ये ऐसे लगता है कि आप जो है मतलब आपके दिमाग में ये कोई स्पिरिचुअल चीजें आ रही है, आपको जो है फेथ या फिर ऐसी चीजें आपको इनसे दिखाई दे रही है। तो ये सारी जो चीजें थी ये भी एक तरीके से बचपन में ही उनको इंडिकेट करवा रही थी कि उनका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट है। और वैसे ही उनको महाभारत और रामायण भी बहुत ज्यादा पसंद थी, तो उनका जो बचपन से ही स्पिरिचुअल की तरफ एक थोड़ा सा झुकाव हो गया। और इसके बाद मेरे को अर्ली ईयर में सबसे अच्छा एक पैराग्राफ लगा जो कि इसी के बाद था कि बी सिंपल बट बोल्ड वर्ड्स वर एन इंडिकेशन ऑफ हिज फ्यूचर मैसेज टू द वर्ल्ड। Addressing large audience in the later years, he would often say, "Do not believe in a thing because you have read about in a book. Do not believe in a thing because another man has said it was true. Do not believe in words because they are hollowed by tradition. Find out the truth for yourself, reason it out, and then realization." ये जो पैरा था, हालांकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा बट मुझे ये पैरा सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब जैसे जैसे मैं इन लाइनों को पढ़ रही थी वैसे वैसे ही मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज होते जाते। तो इस पैरा में वो बस ये बताते कि किसी भी चीज पे ऐसे भरोसा मत करो कि वो चीज आपने कहीं पढ़ी है या फिर आपने कहीं वो किसी ह्यूमन द्वारा सुनी गई है, आपके बड़े द्वारा सुनी गई है, या फिर आपने उसको अपने पुराणों में या फिर अपने ट्रेडिशन जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं वहां तक आपने इसको समझ सका। अगर आपको सच्ची में उस चीज में इंटरेस्ट है, उस चीज को फाइंड आउट करना है, तो आप उसका रीजन जानिए, उसके पीछे क्या रीजन है उसको देखिए एंड देन उसको रियलाइज करिए। तो नरेंद्र नाथ जी के मतलब द्वारा उनका मतलब रियलाइजेशन का ये है। और ऐसी कई सारी चीजें मैंने अपनी रियल लाइफ में भी मतलब देखी हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर बाहर बिल्ली रास्ता काट रही है या फिर स्पेसिफिकली काली बिल्ली रास्ता काट रही है तो हमें वहां से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर हम वहां से जाए तो हमारे साथ भी अनहोनी हो जाएगी या फिर कुछ बुरी घटना हो जाएगी। तो इस चीज के पीछे एक्चुअल में किसी को कोई रियल लॉजिक नहीं पता, बस क्योंकि ये चीजें पुरानों से चली आ रही है, बार बार मतलब बहुत पुराने से आपके मम्मी पापा या जो भी आपके बड़े हैं वो आपको बोलते जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो आपके बड़े लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हम उस चीज को मानते जा रहे हैं। कोई भी इसके पीछे का सही रीजन फाइंड आउट नहीं करना। तो बस बहुत शानदार प्राची, तुमने बहुत खूबसूरती से इस बात को रखा। फाइंड द ट्रुथ फॉर योरसेल्फ, है ना? तुमने जो भी बातें बनाई उसका ये अंडरलाइनिंग मीनिंग है, जो तुमने पढ़ा भी यही लिखा हुआ है। सो that's what makes us a truth seeker, जो लगातार इंगेज होता है, इन्वेस्टिगेट करता है और पता करता है कि क्या सच्चाई है। बहुत ही अच्छा उदाहरण पर्सनल लाइफ से जोड़ करके भी तुमने इसके बारे में बताया। एंड
आई रिमेम्बर कि जब तुम वो बता रही थी, आई एम फॉरगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट राइट ना, बट एनीवे आई विल कम टू दिस। हम इससे थोड़ा सा मूव करते हैं और वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, जब जो उनके लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है, जब वो अपने गुरु से मिलते हैं, रामकृष्ण परमहंस से। तो तुम में से कोई जरा उस पे बताओ, कैसे उनकी मुलाकात होती है, कहाँ से उनके बारे में पता चलता है, शुरुआत कैसे होता है। हाँ, एक चीज प्राची जो मैं कह रहा था कि उस वक्त मैं भूल गया था, कि कैसे वो कुछ चीजों पे सवाल उठाते थे। उदाहरण के लिए, वो रामायण में बड़ी दिलचस्पी रखते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला, किसी ने बताया कि राम ने सीता को छोड़ दिया था किसी खास इस वजह से, उस वक्त उन्हें राम पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राम की पूजा वूजा करना छोड़ दिया और तब महादेव की पूजा करना शुरू किए थे। ये भी उनके बचपन की ही एक घटना है। वेल, सो या मतलब लगातार कैसे मतलब नए नए काम करते रहते थे। इट वाज अबाउट दैट। सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट कि रामकृष्ण परमहंस से उनका कैसे रिश्ता शुरू हुआ, और कैसे उसके बाद कहा जाता है ही वॉज a carrier and interpreter of the words and messages of रामकृष्ण परम। उनके शब्दों का, उनके उपदेशों का वो कैरियर बने आगे चलकर, राइट। इसलिए विवेकानंद मठ कहीं पे नहीं है, रामकृष्ण आश्रम से, राइट। सब कुछ गुरु के नाम से है, उनके नाम से नहीं है। ही वॉज जस्ट कैरिंग द लेगेसी ऑफ हिज ग्रेट गुरु, राइट। तो कौन इस बारे में हमसे बातचीत करेगा? मैं देख रहा हूँ आशिया ने हाथ उठाया हुआ है। ठीक है, आशिया बताओ। तो सर, जो रामकृष्ण थे और जो नरेंद्र नाथ थे, उन दोनों का मतलब उनका चाइल्डहुड था वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट था। मतलब जो नरेंद्र नाथ थे और जो रामकृष्ण जी थे, रामकृष्ण जी जो एक आध्यात्मिक गुरु थे, तो उन दोनों का जो बचपन था वो बहुत अलग था। और रामकृष्ण ने बहुत सारे पहले तो उन्होंने बहुत सारे रिलीजन्स को भी फॉलो किया था, लेकिन उनको सबसे अच्छा रिलीजन लगा था। फिर उन्होंने वो उसी के रिलीजन पे चले थे और उनको बहुत बुरा लगता था, वो दुनिया की बातों से बहुत तंग हो चुके थे। और तो फिर नरेंद्र नाथ आते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या हुआ। तो फिर रामकृष्ण जी बोलते हैं कि तुमने बहुत लेट कर दिया आने में, ये जो दुनिया की बात है मैं इनको सुन सुन के थक चुका हूँ। तो मेरा फेवरेट स्टैंजा तो जो था वो यही था, द पीपल अराउंड हिम वर bewildered to see the transformation of a man whom they had ridiculed only a short while ago as insane. The young priest had become God's devote, the devote, an ascetic, the ascetic, a saint, a man of realization, and the man of realization, a new prophet, like the full-blown blues. Attracting these Ramakrishna due to him men and women of differing faith, intelligence, and social position. He gave generously to all from the inexhaustible store house of divine wisdom, and everyone felt uplifted in his presence. But the master himself was not completely satisfied. He longed for young souls, yet untouched by the world, who would renounce everything for the realization of God and the service of humanity. He was literally consumed with his longing. The talk of worldly people was tasteless to him. He often compared such people to mixture of milk and water, with the latter preponderating, and said that he had become weary of trying to prepare thick milk from the mixture. Evenings, when his anguish reached its limit, he would climb the roof of a building near the temple and cry at the top of his voice, "Come, my boys, oh, where are you all? I cannot bear to live without you." A mother could not feel more intensely for her beloved children, a friend for his dearest friend, or a lover for her sweetheart. तो सर, मैंने जो भी मैंने इस पैराग्राफ में पढ़ा, उसमें मुझे यही समझ में आया था कि जो रामकृष्ण थे, जो उनके एक सोशल पोजीशन भी थी और जो वो आध्यात्मिक गुरु भी थे, तो वो ना वो गॉड पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे और उनको वो गॉड और इंसानियत दोनों पे ही बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। और जब भी वो जैसे कि दुनिया के लोग जो थे, वो जो भी मतलब ऐसी बातें करते थे जिससे रामकृष्ण थे उनको बहुत दुख होता था। फिर उसके बाद रामकृष्ण बोलते थे, अरे कम माय बॉयज, आप मेरे
आप लोग कहाँ हो, आप यहाँ आओ। तो फिर नरेंद्र नाथ जी आते हैं और फिर बोलते हैं कि तुमने इतना लेट क्यों करा, और मुझे इतना लेट क्यों करवाया तुमने, मुझे पहले क्यों नहीं आए तुम। वेरी इंटरेस्टिंग। या ऐसा कई बार कई किताबों को पढ़ते हुए या कुछ लोगों से मिलते हुए हमें लगता है कि पहले क्यों नहीं पढ़ा था ये किताब, या पहले क्यों नहीं इस व्यक्ति से मिला था, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो डिस्कस है। पहली बार वो जब कॉलेज में थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, एक प्रोफेसर के जरिए रामकृष्ण परमहंस के बारे में उन्होंने जाना था। फिर उनसे मुलाकात होती है एंड दैट बिगिंस ऑल सेट ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। वहां से एक अलग जर्नी उनके जीवन की शुरू होती है। एंड ऑफ कोर्स जब हम अब उनके मॉन्क वाले लाइफ के बारे में जानते हैं, कुछ उस कहानियों को टटोलते हैं, तो यहाँ से एक फिलॉसफी भी शुरू होता है। विवेकानंद की लाइफ के बारे में जानना और फिलॉसफी को अलग रखना संभव नहीं होगा, राइट। तुमने एक उदाहरण अभी अभी पढ़ते टाइम पे दिया था। रामकृष्ण एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं और इसका वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि वो कैसे इंसानों को, और ये जो इतनी अलग अलग तरह के देवी देवता हैं या पेड़ पौधे हैं या जो भी फॉर्म हमें देखने को मिलता है, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है वैदांतिक फिलॉसफी या हमारे उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है। तो वो जो एक मतलब की बात होती है कि अद्वैत, कोई चीज दो नहीं है, उसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल रामकृष्ण देते थे। बाद में विवेकानंद जी इसको कोट करते रहे। वो क्ले का, तुम सब लोगों ने कुछ साल पहले तक क्ले से काफी सारी चीजें बनाई होगी ना। तो क्ले से तुम हाथी बना सकते हो, चूहा बना सकते हो, इंसान बना सकते हो, घोड़ा बना सकते हो, लेकिन उसको मिक्स कर दो तो फिर से क्ले बन जाता है। सो दैट्स हाउ डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। ये रामकृष्ण एग्जाम्पल देते है ना, कि हम ऐसे अलग अलग देखने में है, घर है, पहाड़ है, समुद्र है, एवरीथिंग, अलग अलग जीव जंतु जानवर है। इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्ले, राइट। इन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स सबको अगर इकट्ठा करके देखा जाए तो इट्स ऑल लाइक अद्वैत, दो कुछ होता ही नहीं है, एक ही एसेंस से हर चीज बना हुआ है, एंड विच अपीयर्स इन अ डिफरेंट फॉर्म। बहुत मतलब पावरफुल ये उनका एग्जाम्पल है जो इसमें देखने को मिलता है। बाद में कई अलग अलग तरीकों से इसी को अद्वैतवाद को वेदांत के जरिए विवेकानंद रामकृष्ण के इस आइडिया को, पहले रामकृष्ण से ही ये नहीं, भारत में बहुत पहले से ये एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसको और काफी सारे लोग तक लेकर के जाते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू कि हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो भारत में महान हुए, उनके जीवन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा होता है पूरे भारत को देखना, घूमना, राइट। चाहे तुम किसी को भी उठा करके देखो, चाहे पहले हमने कलाम साहब की लाइफ पढ़ी या गांधी जी की लाइफ के बारे में पढ़ा, या किसी के भी लाइफ के बारे में पढ़ो, knowing India is only possible perhaps when you travel across। तो ये विवेकानंद की लाइफ में भी आता है। वो घूमते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, प्रवचन देते हैं, मतलब बहस होती है उनकी। एक बहस जो है, एक बार जब वो अलवर गए थे तो वहाँ के राजा से हुआ और मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आई रीड इट टू दैट, देन आई विल कम टू यू। He had a sharp exchange of words with the Maharaja, who was westernized in his outlook. To the latter's question as to why the Swami, as an able-bodied young man, evidently a scholar, was leading a vagabond's life. या कि राजा ने पूछा, आज भी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि यार कितना हटा कटा तो है, ये भीख क्यों मांगता है, तुम कुछ कमाओ और खाओ। ये सवाल विवेकानंद से किया गया था, है ना, इतना हटा कटे हो और तुम जो है उस राजा ने उससे सवाल किया था। तो स्वामी जी ने उसका जवाब दिया कि टेल मी why you constantly spend your time in the company of westerners and go out on shooting excursions, neglecting your royal duties। उस राजा को कहा कि तुम शिकार करने के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, और जो तुम्हारा ड्यूटी है वो तो करते ही नहीं। महाराजा ने कहा, आई कैन नॉट से वाई बट नो डाउट बिकॉज आई लाइक टू। क्यों ऐसा करता हूँ ये नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा पसंद है शिकार करना और ये सब। वेल द स्वामी एक्सक्लेम, फॉर दैट वेरी रीजन आई वॉन्डर अबाउट एज अ मॉन्क। बिल्कुल मुझे पसंद है एक सन्यासी की तरह घूमना, मैं इसलिए करता हूँ। उन्होंने इसका ये जवाब दिया। बट आगे वाला जो पैराग्राफ है दैट इज वेरी पावरफुल।
Next, the Maharaja ridiculed the worship of images, which to him were nothing but figures of stone. ये जो मूर्ति पूजा करते हैं उसके लिए महाराजा ने कहा कि ये तो बकवास है, ये तो स्टोन से, इसकी पूजा करके क्या है? क्ले और मेटल, मतलब या तो क्ले से बना है, स्टोन से है या मेटल से. The Swami tried in vain to explain to him that Hindus worship God alone, using the images as symbols. The prince was not convinced. स्वामी ने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन वो माने नहीं. The prince was not convinced. Thereupon, the Swami asked the Prime Minister to take down a picture of the Maharaja hanging on the wall. Prime Minister से यहाँ मतलब है कि उस राजा के पास जो उनके मुख्य सलाहकार थे उस वक्त, उसी को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, कि वो जहाँ पे वो लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे कि वहाँ जो टंगा हुआ था एक महाराजा का, मतलब उनके पूर्वजों का एक बड़ा सा तस्वीर, उसको नीचे उतारने के लिए. हैंगिंग ऑन द वॉल एंड स्पिट ऑन इट, और उसको कहा कि इस पे थूक फेंको. Everyone present was horror struck at this effrontery. Swami turned to the prince and said, सबको एकदम मतलब ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसा हो गया है ना. The Swami turned to the prince and said that though the picture was not the Maharaja himself in flesh and blood, yet it reminded everyone of his person and thus was held in high respect. उस तस्वीर में महाराजा फ्लेश एंड ब्लड में तो नहीं है, फिर भी लोगों को इतना गुस्सा आ गया. क्यों? क्योंकि लोग उसमें मानते हैं कि ये महाराजा की तस्वीर है, ये महाराजा ही है ना. So and thus was held in high respect. Likewise, the image brought to the devotee's mind presence of the deity and was therefore helpful for concentration. Especially at the beginning of his spiritual life, Maharaja apologized to Swami for his youth. कितना सुंदर एग्जाम्पल है. आज भी तुम्हें भी लगता होगा, कई लोग तुमसे भी सवाल पूछ सकते हैं, आज भी ये सब पूछे जाते हैं कि इस मूर्तियों में क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, लेकिन स्वामी जी के पास क्या ये पावरफुल एग्जाम्पल है. दिस सच पावरफुल, हाउ डीपली वी आर अटैच्ड. महाराजा की बात जाने दो, तुम्हारे ही मम्मी पापा के तस्वीर पे कोई अगर थूक फेंके, तुम तुरंत लड़ने के लिए वहां पे उठ जाओगे कि ये क्या कर रहे हो, राइट. सो बहुत ही ब्यूटीफुल ये उनका एक आर्ग्यूमेंट था जो स्वामी जी ने दिया. अब मैं देख रहा हूँ कि किसने हैंड रेज किया था अभी अभी, या बताओ बेटे तुम. रेखा wanted to say. Sir, I want to add one line only. This incident attracts me a lot because I want to tell that रामकृष्ण जब ऐसे टीचर थे उनके कि उन्होंने कभी भी किसी भी मोमेंट पे उनके अंदर कोई भी अपनी टीचिंग या कुछ भी डालने की कोशिश नहीं की, कभी भी फोर्सफुली नहीं उनको ऐसा किया. मतलब उनको चूज तो उन्होंने खुद किया, लेकिन कभी भी ऐसा कोई भी तरीका नहीं उन्होंने अपनाया जिससे कि उनको लगे कि मेरे ऊपर ये चीज डाली जा रही है. जब तक वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हुए और उनकी हर क्वेरी को उन्होंने शांत नहीं किया, तब तक उन्होंने उनको एज अ स्टूडेंट भी नहीं रखा और उन्होंने भी उनको गुरु के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया. तो बीइंग अ टीचर हम सब को उनसे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्टूडेंट्स की हर क्वेरी के बारे में सोचना चाहिए पॉजिटिवली और उसको सेटिस्फाई करना चाहिए ताकि बच्चा एक ट्रू मैनर में टीचर को एक्सेप्ट कर सके और उसके साथ कनेक्ट फील कर. बहुत बहुत शानदार, थैंक यू मैम. सो चूंकि हमारे पास किताब में इतनी सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, सृष्टि हाथ उठा रही है. हाँ सृष्टि, बताओ तुम. सर आई वांट टू से कि जब आपने ये हमें स्टोरी सुनाई, जब आपने ये गॉड्स के ऊपर सुनाई, तो इसी से रिलेटेड मुझे एक स्टोरी बहुत अच्छी लगी जो कि हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में थी. तो पहले मैं वो तुम थोड़ा माइक के पास आकर के बोलो, तो मुंह के सामने थोड़ा पास मिलाओ. हाँ बोलो. मैम मतलब सर अभी जो आपने ये स्टोरी सुनाई, जो अभी आपने गॉड्स के ऊपर स्टोरी सुनाई, तो इसी के ऊपर मैंने एक और स्टोरी सुनी थी, मतलब एक और पैराग्राफ पढ़ा था. तो वो मुझे पैराग्राफ बहुत अच्छा लगा पूरी बुक में से, तो मैं पहले रीड करूं. तो सृष्टि अगर तुम्हें उसके बारे में, तो यू जस्ट रीडिंग द पैराग्राफ कि उसमें क्या था पैराग्राफ. सर तो इस पैराग्राफ में था कि इसमें मतलब जो स्वामी विवेकानंद जी थे, तो वो उनके जो शिष्य थे और जो फॉरेन के क्रिटिक्स थे, तो उनसे वो एग्री नहीं थे, क्योंकि वो जो फॉरेन के क्रिटिक्स थे और जो उनके शिष्य थे कुछ तो वो सोचते थे कि इंडिया के इतने नीचे गिरने का कारण उसका रिलीजन है. तो इससे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे. वो उन्होंने उनको बताया
कि असलियत में उनको इंडिया के इतने नीचे गिरने का कारण यह नहीं है, कारण यह है कि जो यहाँ के पाखंडी लोग हैं, जो अंधविश्वास है, वो इसका मेन कारण है। अब हम जो गॉड्स हैं, तो जो आदमी है तो उसके अंदर गॉड्स की वो होगी ना, तो वो उसकी ये उसकी स्ट्रेंथ है कि उसके अंदर वो समझ रहा है गॉड्स को और फिर उनसे बहुत कुछ सीख रहा है। अब इसमें ये वाली मुझे पैराग्राफ बहुत अच्छा लगा। द क्लियर आइड prophet saw that India would rise through a renewal and restoration of that higher spiritual consciousness which had made her at all time the cradle of nation and the cradle of faith. He totally disagreed with foreign critics and the Indian disciples who held that religion was the cause of India's downfall. The Swami blamed rather the falsehood, superstition, and hypocrisy that were practiced in the name of religion. He himself had discovered that the knowledge of God present in man was the source of man's strength and wisdom. He was determined to awaken this sleepy divinity. He knew that the Indian culture had been created and sustained by the twin ideals of renunciation and service, which form the core of Hinduism. And he believed that if the nation life could be intensified through these channels, everything else would take care of itself. The workers for India's regeneration must renounce selfishness, jealousy, greed, and lust of power, and they must dedicate themselves to service of the poor, the illiterate, the hungry, and the sick, seeing in them tangible manifestation of God है। तो इसमें ये भी है कि जो वो कहना चाहते हैं कि जो इंडिया की रीजनरेशन के जो वर्कर्स हैं, उनको अपने जो ये है कि वो ग्रीडी जो उनका लालच है और जो लस्ट ऑफ पावर है उनको छोड़ना होगा, उनको हेल्प करनी होगी। जैसे स्वामी विवेकानंद बचपन से ही कहते थे कि भगवान को पाना है तो हेल्प करो दूसरों की। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जो इंडिया के वर्कर्स है रीजनरेशन के, उनको सेल्फिशनेस छोड़नी पड़ेगी, उनको ग्रीड छोड़नी पड़ेगी, उनको दूसरों की हेल्प करनी है। जो पुअर लोग, जो गरीब है, जो भूखे हैं और जो बीमार है, उनकी हेल्प करनी होगी, तभी ये इंडिया जो है ये आगे बढ़ेगा। और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत खूबसूरत ये लाइन तुमने पढ़ा। सो दिस इज बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ द नेशन शुड बी। आई मीन फॉर एनीवन, लाइक कैसे जब हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं कि कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, बेहतर होगा, सुंदर बनेगा, ये बहुत ही कम शब्दों में एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। इतने सालों पहले विवेकानंद जी अलग अलग जगहों पे बोलते हुए ये बात बताते थे, and it still holds value today. आज भी इन चीजों को if each one of us, if we want to contribute to the nation building, अगर हम सिर्फ यही करें कि अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में, है ना, मदद करें, that's how the nation is built. इसी तरीके से तो राष्ट्र का निर्माण होता है। ये बात विवेकानंद जी इतने सालों से कहते आ रहे हैं। फैंटास्टिक, बहुत शानदार तुमने पढ़ा। मैं देख रहा हूँ रेनू पल्लवी कुछ कहना चाह रही हैं और श्रेया भी। तो यार रेनू आप कहना चाह रही हैं? जैसा कि अभी एज ए वॉन्डरिंग मॉन्क के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि कैसे उन्होंने देवी देवताओं की पूजा के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी तरीके से वो कभी भी डरते नहीं थे किसी से और सच बोलने से बिल्कुल नहीं डरते थे। तो उनकी जो एक घटना है, जब एक बार महाराजा उनसे उनके हाई ऑफिशियल्स के बारे में पूछते हैं तो वो बिना डरे उन्हें चापलूस कहकर संबोधित करते हैं। वो जो पैराग्राफ है उसने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि एक भविष्य का नेता वही बन सकता है, देश को सही मार्ग पर वही चला सकता है जिसके मन में सच को बोलने के प्रति कोई डर ना हो। तो मैं उस पैराग्राफ को रीड करना चाहूंगी। One day in front of his high officials, the Maharaja asked the Swamiji, what do you think of my courtiers? Well, came the bold reply, I think your highness has a very good heart, but you are unfortunately surrounded by courtiers who are generally flatterers. Courtiers are the same everywhere. But the Maharaja protested, my prime minister is not such. He is intelligent and trustworthy. But your highness, prime minister is one who robs the Maharaja and pays the political agent. The prince changed the subject and afterward warned the Swami to be more discreet in expressing his opinion to the officials in a native state. Otherwise, those unscrupulous people might even poison him. But the Swami burst out, what do you think
An honest sannyasi is afraid of speaking the truth, even though it may cost him his life. Suppose your own son asks me about your opinion of yourself. Do you think I shall attribute to you all sorts of virtue, which I am quite sure you don't possess it? I can never tell a lie. तो ये जो इंसिडेंट थी, इसे देखकर मुझे लगा कि हम लोग कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन विवेकानंद जी जो थे, एक महाराजा के सामने भी उन्हें सच बोलते हुए बिल्कुल नहीं घबराए। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मुझे लगता है हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी बात को बिना डरे दूसरों तक सही बात को पहुंचाना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत सुंदर। वेल, श्रेया, want to add something? Yes, Shreya. Yes, sir. Since we have been talking about several things, and I would like to add on and present my perspective on few things, incorporating the ideas of Swamiji. The first thing that we talked about was religion. When I first read about the thoughts of Swamiji in terms of religion and some of the incidences, my perspective totally changed, because most of the times what happens is that we do not take pride in our own legacy, whether in terms of our religion, whether in terms of our state, or whether in terms of our nation. As our Honorable Prime Minister has also given us Panch Prans, which has one of the keys of taking pride in our legacy. And that's what Swamiji explains in a very short incident. He was coming from his journey at Chicago. He was coming back to India, and then he was sitting with his fellow travelers on the ship, and one of them said something wrong about Hindu religion. And then Swamiji suddenly, like, he said that if you said something wrong about my religion, I won't spare you. So one of the things which he was trying to basically express from this incident is that we should always protect our religion, we should always protect our nation and stand for it. Because if someone says wrong about our mother, someone says wrong about our parents, we stand. So why don't we stand for our own religion and our own nation? In this condition, some people might also think that he's kind of promote religion, but he's not. He always has this mindset of whoever so is from the religion, they must follow what is being followed in their religion, and they must protect their religion and their pride as a legacy. And the second thing, one of the most phenomenal things which we youth must definitely learn from Swamiji is his meditation method. On December 24 and 1892, I hope that I am I'm saying the dates correct. If not, please pardon me for that. He was sitting at Kanyakumari, just beside the ocean, and was meditating in a very different way. He was meditating on India's past, he was meditating on India's future and India's present. And one of the incidents also says this. There was a boy who came to Swamiji and said, Swamiji, I am doing so much meditation and I'm still unable to find the peace of my mind. And then Swamiji said, well, my boy, you don't have to sit and close your eyes and do that meditation. You have to open your eyes and see the world with consciousness and serve people. That's when you will find the peace of your mind. And this is one of the most important things we as a youth should learn, because a lot of times people say us to meditate, but what we need to meditate is how India was in past and what we can learn from India in the past and how we can implement it in our present time as well as in the future. So that this nation, which we see today, as maybe some of us might see casteism right now in the nation, discrimination, or maybe a lot of environmental issues. But ladies and gentlemen, it's we who need to work for this nation, right? So this is what I think I learned from Swamiji. Overall, throughout the books, I've read the context, and each and every page has something to deliver. And one of the most important messages that Swamiji has to deliver is the service to humanity. And when we also talk about God, I think I'm taking so much time, so I'll just end by this last point, which I had to say. When he talks about God, he talks about a very different worship. He does not talks about worshiping the idols that we have, the murtis that we have in our homes, but instead he talks about how God is all around us and worshiping the God in the present, which is us people. So this was very interesting thought for me as a youth and for me as a person, because I have always been brought up in a spiritual grounding at my homes, but I have never been able to see that different kind of
dimension to the religion, and that Swamiji showed in this book. We usually follow the ethical dimension of the religion, where we try to worship the God and we think that God will get happy, but that's not the case. Instead of spending our money to worship the God, we should spend the money to serve the humanity, and that's when God will be happy with us. So yeah, these are some of the things which I wanted to present about Swamiji, and something that impacted me a lot. Fantastic. I mean, I think when Swamiji might have been imagining about the youth of future, perhaps the youth like you and the students who are here with us, perhaps this is the dream he might have, the one, who can speak, who can understand, who can comprehend, who has a mission in the life. So very beautifully you narrated it, Shreya. I think you took very less time. I would like you to take a little more time. And why don't you also take us to one of the most interesting aspects of his journey, that is his presence at the World Congress of Religion, Parliament of Religion, that happened at Chicago in 1893. So tell us something from that aspect of his presence, his message to the world from that World Congress of Religion. And that was the event which transformed him. That was the event that we know him today as Swami Vivekananda. From there, his transformational journey, I mean, particularly that the world knows about him begins. So if you can share something about the World Religious Congress and Swami's message to the world at that point. I'm not sure, sir, if I could say much more about it, because I'm not that informative of this part of the section. But I would definitely add on to a gist where Swamiji went there and represented the religion, the Hindu religion, and the spirit of Vedanta, the things that he learned. And when he came back, one of the incidents that happened when he was coming back to India, he had a grand welcome in India. So many people just coming to see Swamiji. And he said that one of the things which my mentor always says is that when an ordinary man completes his journey, the man becomes son. And that's what also reflected in the words of Swamiji when he came and he said that I am no kind of prime minister, I don't have any kind of position, but there are millions and millions of Indians waiting for me and marching there right now, just for Swamiji to arrive. And he took it in a very different way. A lot of times what happens is that we get a lot of appreciations and then we try to slow down our progress, or maybe take it in some different way. We change our attitudes and it feels like we are at the toppest of the world. But Swamiji talks about how he as a person is not getting praised. Instead, his principles and the kind of discipline he has is getting praised. When people praise him for coming back to Chicago and how he well represented Hindus and how he well represented the nation India. So this was one of the incidents that inspired me. And what it tells us is that whenever we go at, maybe we achieve the highest feats in the world, but we always need to be down to the earth and always have that spiritual grounding that Swamiji had. Because at the end of the day, we are not praised as a person, but what we are praised is for our actions and for our principles that we live by. Fantastic, Shreya. I think while you were speaking, your principal was listening to you, and so is our boss. And so they would like to speak to us. Chandanji? Yeah. So, welcome, Pandey sir, to this. Thank you very much. Student. जी. I'm at Aya Nagar School. जी जी जी. चंदन जी सर का वीडियो. Hi Shreya. Namaste sir. Namaste. Wonderful Babu. Thank you so much sir. चलो मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे पास आऊंगा वहीं अभी, ठीक है? Sure sir. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बाबू, वंडरफुल. अभी कंटिन्यू करो और फिर मैं अभी सुन रहा हूँ, ठीक है ना?
थैंक यू सर। अभी सर आकर के हम सबसे मिलेंगे। सर इज हियर, इतने दूर से सर आए हैं जस्ट टू बी विथ अस, टू बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर, वी विल बी वेटिंग। So, ma'am, yeah, ma'am, if you would like to say something. Geeta, ma'am, if you would like to say something to your students. Geeta, ma'am. Somehow शायद call left हो गया. Yeah. Suman ma'am is going there. Yeah, so we continue now, right? I mean, this will keep happening. Fantastic. I mean, couple of hands I could see. Ria wants to say something now. Sakshi, Ria, and all. Now your turn, Ria. Yeah. या सर जैसे कि जो स्वामी जी थे वो हमारे इंडिया से कास्टिज्म हटाना चाहते थे। तो जब वो वृंदावन जा रहे थे, मुझे ये इंसिडेंट ने बहुत इंस्पायर किया। मुझे लगता है कि मैं उनसे सीख के कुछ कर सकती हूँ अपने देश के लिए, हम सभी कुछ कर सकते हैं। तो जब वो वृंदावन जा रहे थे तो एक रोड साइड पे एक इंसान उनको स्मोक करते हुए दिखा। वो उनके पास गए और उनको कहा कि आप मुझे अपने तंबाकू में से कुछ दीजिए, थोड़ा सा दीजिए। तो वो थोड़ा शॉक हो गया बिकॉज वो एक अनटचेबल कास्ट का था जिसे हरिजन कहते हैं। तो वो थोड़ा सा शॉक हो गया क्योंकि स्वामी जी उस टाइम पे एकदम सन्यासी के गेटअप में थे। तो आज तक उसके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था, क्योंकि कोई भी पंडित हो, पुजारी हो, कोई भी उसके के पास नहीं जाता था, ना उसे मंदिर में एंटर करने को मिलता था। तो वो थोड़ा सा शॉक हो गया कि वो मुझसे मांग रहे हैं, मतलब उसने कुछ बोला नहीं बट वो एकदम शॉक हो गया। देन स्वामी जी खुद बोलने लगे कि ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि मेरे देश का इंसान अपने आप को ऐसे हीन भावना से देख रहा है। हम वो उनका कहना ये था कि भगवान को आप किसी भी रास्ते से पा सकते हैं। हाँ, हमारे रास्ते जरूर अलग हो सकते हैं पर भगवान एक ही है। तो सर जब उन्होंने उनसे लिया और उसी तंबाकू को उन्होंने दिखाया। देन एक और बार उनका एक और इंसिडेंट था सर, जब वो एक टेंपल से आए तो उन्हें ना एक मुस्लिम वो मिला, स्टाफ था वहाँ का। तो उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया एकदम। वो खुद एक उनके जो शिष्य थे वो बहुत ज्यादा वो दुखी हो गए, नाराज हो गए उनसे कि आप हिंदू, मतलब वो हिंदू थे तो उनके अंदर हिंदुइज्म का थोड़ा ज्यादा ही था। वो मुस्लिम को आजकल भी होता है कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कहते हैं कि वो हमारे मंदिर में नहीं एंटर कर सकते। तो वो लोग थोड़ा नाराज हो गए कि स्वामी जी उनका आदर सत्कार क्यों कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने उनको ये बोला कि जो भी है, जो भगवान है वो इंसान के अंदर है। अगर मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो सर स्वामी जी का एक यही कहना था कि चाहे किसी भी रास्ते से आप चले पर भगवान एक ही है, वहीं तक आप पहुंच पाएंगे। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत। मैं जब तुम बता रही थी आई वाज वंडरिंग, तुम लोगों को नहीं लगा कि स्वामी विवेकानंद जिनका फोटो देखते हो बहुत शानदार, उनका वो हुक्का पीते हुए वाला चेहरा तुम्हारे सामने आया कि कितने यस सर, राइट, कि वो स्मोकिंग भी कर लेते थे, राइट, और वो काफी देर तक करते रहे, है ना। एंड जैसे हमें लोगों का एक इमेज रहता है, यू नो, एंड हाउ डिफरेंटली, वैसे ज्यादातर साधु महात्माओं में ये बहुत पॉपुलर है, राइट। एंड तो या आई मीन सो दैट इमेज, आई मीन तुम लोग जब इसके बारे में पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा कि ये कैसा लग रहा होगा, यू नो, स्वामी विवेकानंद। यस सर, थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि आज तक किसी ने ना देखा था। मैंने तो सर पर्सनली कुछ ऐसा नहीं देखा था। जब भी मैंने देखा तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा। तो और ना इसमें थोड़ा मुझे इंस्पिरेशन भी मिली, तो मैंने सोचा कि यही मुझे बोलना चाहिए। और सर इसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे यही लगी ना सर कि वो एक तो सन्यासी हैं और तो भी वो किसी अनटचेबल के पास जाके वो स्मोक मांग रहे हैं। और सर ये बात तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी उनके बारे में। वेरी या, तो हमारे किताब पढ़ते हुए ऐसी इंटरेस्टिंग बातों पे भी ध्यान रखना होता है। आई सी मेनी ऑफ यू हैव रेज्ड हैंड। मैं चाहूंगा जिसका नंबर नहीं आया, क्योंकि सबको मौका मिले बोलने का। लाइक दिव्या ने अभी तक नहीं बोला है, राइट दिव्या? यस सर। बोलो तो।
यस सर, मेरा मानना है कि स्वामी हम सब के लिए, हम यूथ के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करते हैं। वो एक स्पेशल लीडर्स भी थे, लेकिन मेरे हिसाब से उनका जो इनर कोर, जो पर्सनालिटी बोलते हैं स्वामी जी का, वो बेसिकली एक सेवा के तौर पे था। वो उनकी मेडिटेशन अलग थी, उनके स्पिरिचुअल बिलीफ्स अलग थे, लेकिन उनका जो सोसाइटी के लिए कुछ, सोसाइटी को कुछ देना, मतलब सोसाइटी की सेवा में अपना टाइम इन्वेस्ट करना, उनके लिए वो सबसे बेस्ट पार्ट था। वो चीजों को उन पे बिलीव करते थे, लेकिन वो उनके कोर तक ज्यादा पहुंचते थे कि ये है तो ऐसा है क्यों, और वही उनको और आगे मोटिवेट करता था कि वो सोसाइटी तक अपनी बात पहुंचा सके। मोस्टली वो लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट होते थे, उनके पास बहुत नॉलेज थी, लेकिन वो दूसरों से नॉलेज लेना बहुत पसंद करते थे, दूसरों की चीजों को बहुत अडॉप्ट करते थे, और वो बहुत फैसिनेटेड पर्सनैलिटी थी उनकी। मतलब वो लाइफ को एक ऐसे टीचिंग बोर्ड की तरह मानते थे कि जो सीखने को मिल जाए वो बेटर है, और वो उसे यूज करते थे फॉर द सोसाइटी नीड। वो फैसिनेटेड थे हर वो छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े व्यक्ति तक की थॉट्स को सुनना पसंद करते थे। वो सोसाइटी को वो बेसिकली उनका इनर कोर पर्सनालिटी लर्निंग और सेवा था, सेवा टू सोसाइटी एंड लर्न फ्रॉम सोसाइटी। तो स्वामी जी यूथ के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, और हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम यूथ होके सिर्फ जो है मतलब टीचिंग्स पे ही ना, मतलब जो पढ़ रहे हैं उस पे ही ना रहे, हम उसे इम्प्लीमेंट करें, सोसाइटी को अपना कुछ इन्वेस्ट करें, सोसाइटी पे अपना टाइम, अपना जो नॉलेज है सोसाइटी को दे, उनको सर्व करें, हम उनकी हेल्प करें जिनको हमारी जरूरत है, और सबको एक तौर पे माने, भले ही वो कोई सा भी रिलीजन हो, सबका एक ही माध्यम है कि वो गॉड तक पहुंचे, और गॉड का कहना है कि सब सोसाइटी में एक है, और सोसाइटी में सेवा भाव रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। सर आई वांट टू ऐड समथिंग। बहुत खूबसूरत साक्षी ऐड करना चाह रही है। या साक्षी, गिव मी अ सेकंड। आई मीन दिव्या ने बहुत खूबसूरती से स्वामी जी के लाइफ के अलग अलग हिस्से को और ब्यूटीफुली जो दो मैसेज मुझे लगता है कि लर्न फ्रॉम द सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, है ना, समाज को सर्व करना और वहां से सीखना, इस दोनों के लिए हमेशा ओपन रहना बहुत शानदार है। और तुम जब उनके लिए तमाम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर रही थी तो एक एडजेक्टिव जो किताब में भी है, बहुत हैंडसम भी थे, है ना, तो फोटो में भी आता है और लिखा भी। राइट, साक्षी तुम कुछ कहना चाह रही हो? राइट सर, स्वामी जी जो थे वो खुद भी बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थे, एंड स्वामी जी की लाइफ का मोटिव ही था सर्विस टू द पीपल एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो मैं एक कुछ ऐड करना चाहती हूँ स्वामी जी के लाइफ से ही, कुछ एक इंसिडेंट जो कि था स्वामी जी का शिकागो का जो स्पीच था, वो बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ के लिए। मींस जब भी हम स्टेज पे जाते हैं हमारे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्पीच रेडी होती है। इवन कंट्री का कोई नेता भी होता है, वो स्टेज पे जाने से पहले एक बहुत ब्यूटीफुल स्पीच लेके बैठा रहता है अपने पास, एंड देन ही रिप्रेजेंट्स हिम। तो स्वामी जी जब शिकागो में गए थे, उनके पास कोई स्पीच रेडी नहीं था। दुनिया भर से, बहुत सारे वर्ल्ड से अलग अलग प्रेसिडेंट आए हुए थे कंट्री के, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली अपनी बात को रिप्रेजेंट किया। एंड स्वामी जी जो थोड़े से अंदर से नर्वस थे, वो ऑन द स्पॉट स्टेज पे गए एंड उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट की, द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द अमेरिका, जिससे कि हमें पता चलता है कि स्वामी जी के अंदर जो है वो कैसे वो हर एक रिलीजन को, हर एक कास्ट को, चाहे वो इंसान हो या फिर कुछ भी हो, सबको एक इक्वली रिप्रेजेंट करते थे। मींस मुझे आज ये जानकर बहुत दुख होता है कि हम अपने ही बनाए हुए कास्ट सिस्टम में इतने उलझे हुए हैं, हमने लोगों को इतने ज्यादा सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है कि हम अपनी ही ग्रोथ खुद ब खुद रोके जा रहे हैं। तो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल लाइन फ्रॉम हिम लाइफ। थैंक यू। Beautifully you have put it. Very nice. Brothers and sisters of America. और लोग कहते हैं कि एक तरीके से कई जगह पे लोगों ने उसको नोट किया है कि लोग एकदम हिप्नोटाइज हो गए थे उनके उस भाषण को सुन करके, और इतना प्रभावशाली उनका वो भाषण था वहाँ पे शिकागो में। आई सी की भावना हैंड रेज कर रही है। भावना, प्लीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर। सर इसके अंदर मतलब ये जो पूरा
बुक थी वो बहुत ही इंस्पायरिंग थी, पर जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा या जिसने मुझे इंस्पायर करा वो पार्ट था जिसके अंदर स्वामी जी सेकंड विजिट टू द वेस्ट जाता है। मतलब वो न्यूयॉर्क के अंदर एक स्पीच दे रहे थे जहाँ पे सब लोग जो थे 15 मतलब सब लोग थे उनके जितने भी डिस्पाइट थे, फ्रेंड्स थे, वो सब उनको सुनने आए हुए थे। तो सब लोग वहां पे बैठे रहते हैं, फिर स्वामी जी आता है और 15 मिनट तक वैसे ही टेंस इन्वायरमेंट रहता है। उसके बाद स्वामी जी 15 मिनट बाद सब लोग एकदम गुस्से में कि स्वामी कब बोलेंगे, स्वामी जी कब बोलेंगे। उसके बाद स्वामी जी कुछ बोलते ही नहीं है और वो करके चल जाता है। तो फिर उनका एक फ्रेंड या फिर आप डिस्पाइल कह सकते हैं, वो उनसे पूछता है कि क्या आप अपनी पॉइंट्स भूल सकते हो, मतलब क्या आप अपनी पॉइंट भूल गए थे। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, पर आज मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर बहुत पावर है और ये जितने भी यहाँ पे मेरे सामने लोग थे ये आज एक सॉफ्ट क्ले जैसे हो गए थे और आज मैं जो भी बोलूंगा ना या इनको जैसा बनाना चाहूंगा ये वैसा बन जाएंगे। और वो ऐसा कभी नहीं करना चाहते थे। उनके जो प्रिंसिपल थे वो उनको ये कहते थे कि तुम्हें अपने जैसे बनना है, तुम्हारे अंदर क्या है तुम्हें वैसे बनना है। वो कहते थे हाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, लेकिन जो तुम्हें करना है वो करो। जैसे आज के समय पे कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि कहीं उनका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, स्टडी नहीं होता, अलग अलग फील्ड भी होती है। बस पेरेंट्स सबसे कंपैरिजन करते हैं या फिर चाहते हैं कि बच्चे हमारे जैसे ही बन जाए। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें पता है हम लोग तो भाई एक मोमबत्ती की लाइट में पढ़ते थे, ये ऐसी बातें बोलते हैं। तो हमको किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई हमारे जैसे ही बन जाए, वो जैसा है उसको वैसे ही बनने देना चाहिए। और सर जो रिया स्मोकिंग वाली बात बोल रही थी उससे मतलब जो एक स्टेंजा था टुवर्ड्स द एंड वाला, उसके अंदर बहुत एक फनी सा पार्ट आता है जो मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक बार डिनर का समय था, जो होस्ट थी उस डिनर की वो किसी को ना स्मोकिंग करना अलाउ नहीं कर रही थी। तो सब लोग बैठे हुए थे और वो अपनी स्मोकिंग की पाइप निकाल के स्मोक करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो कि मेरे को बहुत ज्यादा शॉक होता है कि मतलब स्वामी जी स्मोक करते हैं। और इसी पे भी जब मैं सर्च करती हूँ ना और गूगल पे, तो मुझे पता चलता है कि वो इवन तो नॉन वेजिटेरियन थे, जो कि मुझे बहुत सरप्राइज करता है। फिर मैं उनके रीजंस भी जानती हूँ जो और ही सरप्राइज करते हैं कि मुझे मतलब जानने को मिलता है कि जो मॉन्क होते हैं वो नॉनवेज खाते हैं क्योंकि वो दे आर बेसिकली भिक्षु। तो भिक्षु को जो मिलेगा वो खाते हैं, तो उनको नॉनवेज भी एक्सेप्ट करना पड़ता था, अगर उनको जो मिलेगा वो एक्सेप्ट करना पड़ता था। हाँ, तो वो वाली जो बात थी जो उनकी डिनर की थी, तो वहां पे स्मोकिंग पाइप निकालते हैं और फिर जब हॉस्टेस जो थी वो वापस आती है, तो वो कहते हैं कि आप ही क्या कर रहे हो, आप सबको चैम्बर बना रहे हो सबके लंग्स को, ये गलत है आप मत करो। तो स्वामी जी मतलब इतनी क्यूटली रिप्लाई करते हैं कि वो मतलब उनकी बातें रिप्लाई नहीं करते, वो कहते हैं कि ये स्मोकिंग पाइप भी जिसने बनाई वो भी कितना शानदार इंसान था ना, उसने एक पाइप का इन्वेंशन करा है। तो मुझे ये बात जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब मेरे को बहुत समय तक हंसी आती रहती है इस बात को सोच सोच कर, कितना मतलब जो महान इंसान है उसके अंदर भी एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है जो ऐसी बातें करता है, जो ऐसी सोच रखता है। थैंक यू। और तुमने कितनी खूबसूरती से इन बातों को रखा है, इट वाज रियली वेल प्रेजेंटेड, बहुत शानदार। वो जो बात तुमने बताई नॉनवेज वाला, वो इस किताब में कम से कम नहीं लिखा हुआ है। तुमने बताया भी कि गूगल पे तुमने यस सर, यस सर। so we do not know, at least in this biography this hasn't been mentioned, so matlab I don't know. Yeah, I think Kalpana is now ready to say something. Yeah, Kalpana. Yes, sir. There are so many things to learn from Swamiji respectively. He's a very big personality. His personality is awesome. So many people used to listen him. His words were very attractive. Even at the Parliament of Religion at Chicago, he was addressing people. When he went on the stage, he was very much nervous, as everyone is. When we have to speak at a very big conference, we all are nervous. Exactly. He was also nervous, and he was not able to say anything in 10 minutes, and he was delaying the speech. And then after it, when he started with the salutation that good morning to dear America, my dear sisters and brothers of America. He said them sisters and brothers. That touched the hearts of the people of America, and they standed, and there was a round applause for him, a big applause that ended for at least 10 minutes. That was a very big thing. Everyone was hearing him, and his speech, which was very much beautiful. That he said that not every religion is significant.
every religion has its own significance. Like a Christian is not supposed to be a Hindu or a Buddhist, or a Hindu is not supposed to be a Buddhist or a Christian. But everyone should follow his religion and should follow his religion and should go through the path it shows, because every religion at the end shows the path to the God. As at the same thing, I would like to relate, as our homes are different, but we had to come to the school as our destination. We all came to the school by different paths. Maybe I use different path, and the student would be different students would be using different paths, but our destination was same. That was school, and everyone reached the school at the same time. If we compare it to the God is school, and the students are using different paths to come to the school, and the same way they reach the school. The same thing can be related to the God, as we follow different paths, but we will reach to the God at the end. That was very much inspiring. He even said that the one who thinks that my religion is superior is not good, because he even said that I pity on them who think that their religion is superior and should retain, and every religion should be destroyed, because he thinks that every religion has its own significance and has produced a men and women of exalted characters. And these were all the things that I learned from him, that neither of any religion is superior or inferior, but every religion is equal, and every religion is showing us this correct path to lead to the God. We just don't need to deviate from our paths, and we will reach to the God. ब्यूटीफुल कल्पना, तुमने उनके बायोग्राफी से ये बहुत ही खूबसूरत हिस्सा शेयर किया है, which is the universal message. And perhaps अगर हम इनकी बातों को माने तो दुनिया भर में जो इतना अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच में लड़ाइयाँ होती है वो कभी नहीं होगा. If we believe very strongly कि हमारा धर्म खूबसूरत है, लेकिन दूसरे का भी उतना ही खूबसूरत है, and we live by our own religion and we do not fight. बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज था जो तुमने शेयर किया. I see that Riya wants to say something. Yeah, Riya. सर, जैसा भावना दीदी ने कहा कि जो हम कंपैरिजन करते हैं, तो मुझे इस चीज से एक और मतलब भी समझ आता है कि अगर हम किसी के दिखाए हुए पाथ पे चलेंगे तो हम वो जहाँ पहुंचा है वहीं पहुंचेंगे, पर अगर हम अलग पाथ को चुन के वहां चलेंगे तो शायद हम उससे आगे भी पहुंच सकते हैं और अपनी नई पहचान बना सकते हैं. शानदार, खूबसूरत, क्या बात है. बहुत ही शानदार तुमने बताया. यस, वी ऑल नीड टू फाइंड आवर ओन पाथ. विवेकानंद को एक ही हो सकता है, एवरीबॉडी कैन नॉट. सब अपने अपने में होगा, यू नो, और वो अपने तरह का. बहुत सारा, क्या शानदार बात है. सर, पल्लवी कुछ कहना चाहती है. जी, पल्लवी Hello. First, I want to read my paragraph. On one occasion, Sri Ramakrishna proposed to transfer to Narendranath many of the spiritual powers that he had acquired as a result of his ascetic disciplines and vision of God. Naren had no doubt to considering the masters possessing such powers. He asked if they would help him to realize God. Sri Ramakrishna replied in the negative, but added that they might assist him in his future work as a spiritual teacher. Let me realize God first, said Naren, and then I shall perhaps know whether or not I want supernatural powers. If I accept them now, may I forget God, make selfish use of them, and thus come to grief. Sri Ramakrishna was highly pleased to see his chief disciple single-minded devotion. ये वाला पैराग्राफ मुझे इसलिए इतना अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो रामकृष्णा होते हैं वो ऐसा सामने नरेंद्रनाथ को ऑफर देते हैं कि मैं तुम्हें नेचुरल जो शक्तियां होती है, नेचुरली पावर, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ. तो नरेंद्रनाथ ने कहा कि ऐसा अभी तो नहीं करूंगा मैं, फर्स्ट तुम मुझे गॉड को रियलाइज करने में हेल्प करो. उसके बाद नरेंद्रनाथ ने थोड़ा नेगेटिव टाइप आंसर दिया और कहा कि अगर एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे अभी जो नेचुरल पावर्स है वो ले लेता हूँ तो हो सकता है कि मैं गॉड का मिसयूज करूँ और हो सकता है कि मैं भगवान हो जाऊँ. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने यहाँ पे कोई भी स्वार्थ लाइक ग्रीडी चीजें अचीव नहीं की.
और उनने काफी ऑनेस्टी से इस चीज को कहा कि पहले मुझे तुम स्टार्टिंग से बताओ एंडिंग तक या फिर होने क्या वाला है, पहले ही मैं लालच के अकॉर्डिंग भगवान की शक्तियों को ना चूज करूं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो आज भी भगवान की पूजा करते हैं सिर्फ इसलिए कि गॉड हमारी ये विश पूरी कर दे, ये विश पूरी कर दे। बट नरेंद्र नाथ ने ऐसा नहीं किया, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे रामकृष्ण की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हर एक इंसान की बात सुनते हैं, चाहे वो बात सुनने लायक हो या नहीं हो। बहुत लोग कहते हैं ना कि बस हल्की फुल्की बच्चों से ही बातें करते हैं लोग, लेकिन रामकृष्ण को उन बच्चों वाली बातों में काफी इंटरेस्ट था, तो मुझे ये अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत, कितनी शानदार बात तुमने कही कि बिना एलिजिबिलिटी प्रूफ किए वो नहीं चाहते थे कि उनमें कोई पावर आ जाए, जब वो पावर को लेने के लायक बन जाए तब वो आए। तो बहुत बहुत खूबसूरत। आई थिंक हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं सब ने बोला है, या कोई बाकी है अभी? Yes, sir. I'm Prishla. I want to say हाँ something. बेटे, तुम ऐड करो जो तुम ऐड करना चाह रहे हो। Yes, sir. Sir, first of all, I want to say that Swami Vivekananda is such an inspiring person. I loved every extract about him. I was literally confused what to say about him. So I chose some of the paragraphs and some of the extracts from the whole book. First of all, I would like to say that the one thing I liked in him was that he was a purely democratic person. Whether if it is talk about racial, whether it is talk about gender, caste, anything. I was so surprised to see how purely democratic he was. I saw an extract in which he was in America and he saw two women. One was very highly rich and other was very poor with torn clothes, and they were both sitting together and laughing. So when Swamiji saw that, he was so happy to see that, and he said that I can die in peace and without worrying about America, just because of these purely hearted women. They were really. After seeing those American movies, he was thinking about India. He wanted to make the Indian women like them. And one more thing I want to say that I had an extract said by Swami Vivekananda ji, which I want to share. It was the incident in which some fraudulent organizations were against him. But the thing I saw in him, he was not frightened, he was not fearless. And an extract also represented his fearless nature. This was a Polish proverb, that is, the sickle had hit on a stone. This represented how fearless he was. And after all these propositions given by the fraudulent organization, he said, I stand for truth. Truth will never ally itself with falsehood. Even if all the world should be against me, truth must prevail in it. This extract really, I was so impressed by reading this. I personally like this extract because I chose science as my main subject because the main reason for choosing science and the main reason for loving this extract was exactly the same. I chose science just because I stand for truth. I believe in truth, and I believe that even if the whole world will be against me, I will always must stand by the truth. That's why I like this extract, and I saw that Swami Vivekananda exactly believed this extract. So this inspired me the most. Thank you. Well, so fantastic, Rekha. I could understand that even if the whole world is against you, you will continue with your science stream, So right? she is Prisla. Okay. Yeah, so fantastic. I think all of you have participated. The way you brought the democratic aspects of his personality. I was wondering कि कितना शानदार होता है कि otherwise हम मिस कर जाते हैं कोई ना कोई हिस्सा, लेकिन जब तुम सब बोलते हो तो उनके कई सारे ऐसे हिस्से हैं जो अदरवाइज मिस कर जाते हो, उसको सामने लेकर के आते हो, एंड विच आर लाइक सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल. नाउ आई मीन, जब तुम लोगों ने इतनी अच्छी बातचीत की है, तो जो हमारे वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल मैडम हैं, वो हम लोगों के साथ जुड़ना चाह रही हैं, बातचीत करना चाह रही हैं. सो आई वेलकम बबीता मैम एंड गीता मैम. प्लीज शेयर. हाँ जी, सभी को नमस्कार. सर, मैं विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रसंग जो मुझे बहुत प्रेरक लगा, उसका वर्णन करना चाहूंगी. उन्हें भ्रमण का बहुत शौक था, और एक बार जब वो बनारस में गए थे भ्रमण के लिए,
तो वहां पर उनके पीछे बहुत सारे बंदर पड़ गए, बंदरों का झुंड उनके पीछे भागने लगा और नरेंद्र आगे आगे भागे जा रहे हैं। तभी वहां उन्हें एक वृद्ध संत मिले, सज्जन पुरुष मिले। उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम इनसे डरो मत, भागो मत, रुको, इनका डट कर सामना करो, फिर ये तुमसे ही डर जाएंगे। नरेंद्र ने ऐसा ही किया, पलट कर बंदरों की तरफ गुस्से से देखा और धीरे धीरे सारे बंदर पीछे हट गए। तो उनके जीवन की ये जो घटना है ना सर, ये मुझे बहुत प्रेरित करती है और उससे हमें और हमारे बच्चों को ये सीखना चाहिए कि जितनी भी मुसीबत आए, विपदा आए, आपत्ति आए, हमें उससे भागना नहीं है, डर कर भागना कोई समाधान नहीं है, हमें डटकर उनका सामना करना है। तो मैं यही संदेश अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहती थी। बहुत ही सुंदर उदाहरण आपने शेयर किया कि हमें बंदरों से नहीं भागना है, मतलब मुसीबतों से नहीं भागना है, डट कर मुकाबला करना है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, थैंक यू गीता मैम। गीता मैम, आप अपने बच्चों के लिए और अपने टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग बहुत ही शानदार बच्चे हैं। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं बीपी पांडे सर को कि उन्होंने हमारे स्कूल को चूज किया फॉर दिस इवेंट। मेरे लिए ये बिल्कुल ही नया एक एक्सपीरियंस है, इस तरीके का कोई भी इवेंट जिससे पहले मैंने नहीं अटेंड किया, और काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया आपने, चंदर सर और मुरारी सर ने। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड अ बिग थैंक टू माय मेंटर सुमन रेलन मैम कि उन्होंने हमारे स्कूल की तरफ से इनिशिएटिव लिया सो दैट यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो सके। और उससे भी बड़ा धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों को और मेरे टैलेंटेड बच्चों को। जिस तरीके से मेरे बच्चे बोल रहे थे, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड एंड द बुक दैट यू हैव सिलेक्टेड इट्स वेरी गुड कि हमारे बच्चों को इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें अभी मैम ने ही बात की कि किसी चीज से डरना नहीं है, और एक्सेप्टेंस जो हम स्वामी विवेकानंद जी के बायोग्राफी से सीख सकते हैं, वो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है, वो एक्सेप्टेंस दूसरों के लिए। जो हम जैसे उन्होंने शिकागो सम्मेलन में जैसे ही उन्होंने बोला कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो वो वहां पर तालियों से गूंज उठा उनका पूरा हॉल। तो वो एक एक्सेप्टेंस थी जिसको वहां पे सबने अप्रिशिएट किया। तो यही एक्सेप्टेंस मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के अंदर भी आए, स्कूल के लिए, सोसाइटी के लिए, टीचर्स के लिए। और एक बार हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर कोई भी चीज हमें परेशान नहीं करती और हम हर चीज का आसानी से मुकाबला कर पाते हैं। So again, a very big thank you to all of you who have organized this, and we are looking forward to many more such events in our school and more exposure for our students. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you for facilitating all this. Chandan ji, we are also waiting to hear from you. Sonam, आप भी कुछ आई? चंदन जी, सो मैंने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है बेसिकली। तो in 1894, while writing to his Indian devotees, he wrote a message: let each one of us pray day and night for the downtrodden millions in India who are held fast by the poverty, pedicraft, and kindness. Pray day and night for them. I care more to preach religion to them than to the high and the rich. I am no metaphysician, no philosopher, nay, no saint, but I am poor. I love the poor, who feels in India for the 300 millions of men and women sunken forever in poverty and ignorance. Where is the way out? Who feels for them? Let these people be your God. Think of them, work for them, pray for them incessantly, and the Lord will show you the way. Him I call a Mahatma, a noble soul, whose heart bleeds for the poor. Otherwise, he is Duratma, a wicked soul. So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them. We are poor, my brothers, we are nobodies, but such have always been instruments of the Most High. So he urged people to, come out of their comfort zone and use their all the resources, whatsoever they have, for the good for the people, for the poor. So yeah, this is it.
बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने चंदन जी, जो इनफैक्ट काफी पॉपुलर है कि कोई भी हमारे समाज में, देश में गरीब है, पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए जो एबल बॉडीड पर्सन है, जो समाज में आगे बढ़े हुए लोग हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो सभी लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने पढ़ा इस किताब से, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, मैं देख रहा हूँ आप में से कई बच्चों ने हाथ उठाया हुआ है। ये एक ऐसी चर्चा है कि हम घंटों चला सकते हैं, और हम इसको खत्म भी वहीं पे करना चाहते हैं, और करते हैं जहाँ एक बार बहुत पे कुछ, चलिए। हाँ, जहाँ बहुत कुछ बोलने के लिए रहे, बिकॉज दिस इज जर्नी दैट नीड्स टू कंटिन्यू। हम करीब करीब 1.5 घंटे की चर्चा कर चुके हैं, एंड आई होप कि आप इस चर्चा को जब आप आपस में मिलेंगे तब आगे बढ़ाएंगे, इस किताब के बारे में और बात करेंगे। बट द मोर इंटरेस्टिंग मैसेज इज कि आप और भी किताबों को पढ़ेंगे। जो हमारे साथ सर हैं, बहुत दूर से आए हैं सर इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। सर जल्दी ही मतलब आपके स्कूल में ही हैं, बीपी पांडे सर। सर एक बार आप भी बच्चों से कुछ बातचीत कर लीजिए, और फिर हम इसको प्रोग्राम को खत्म करेंगे। थैंक यू मुरारी जी। सबसे पहले सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बधाई, जितने भी बच्चे इसमें जुड़े हुए थे। और वंडरफुल सेशन, मैंने इसको डायरेक्टर साहब को भी लिख कर दिया, और आज मैं चाह रहा था कि ये जो फेसबुक है उनको, और जो लाइव हो रहा था और जो रिकॉर्डिंग है, और डायरेक्टर साहब को और मिनिस्टर मैडम को भी मैं उसको भेजूंगा कि वो देखें बच्चों के साथ। जो विवेकानंद की जो किताब इन बच्चों ने सिलेक्ट किया था, वो रियली बच्चे, ये एक सिर्फ किताब नहीं है बल्कि एक जीवन की फिलॉसफी है। और इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि ये जीवन में इसको अपने अंगीकृत भी करना है, इसको ढालना भी है। और इसको जब तक ये जब इसको ढालेंगे नहीं तो सिर्फ इसको ना पढ़ने कोई औचित नहीं, इसको अपने जीवन में लाइए। जो विवेकानंद जी की फिलॉसफी है, विवेकानंद जी के जो आपने आज पढ़ा है, मैं आज एक सारे बच्चों को एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि आज इसको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर हमको ले जाना है, और सबसे पहले आया नगर के बच्चों को उस प्लेटफॉर्म पर देना है। ये जो उसका कल्चर डेवलप कर रहे हैं, जो आया नगर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ की डायरेक्टर साहब हों, मिनिस्टर मैडम हों, सारे ऑफिसर्स हों, और ढेर सारे बच्चे हों, 250-300 बच्चे तो वहाँ बैठें, और इन बच्चों को वहाँ लाइव हों, पूरे हर एक स्कूल में ये कहें, और कंपलसरी करें कि ये लाइव हो, क्योंकि इसको हम पूरे दिल्ली में बच्चों की रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं। और ऐसे ऐसे बुक को लाएं, और ये बच्चे पढ़ के अगर सुनाएंगे तो बच्चों में बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भी मिलेगा बच्चों से कि ये पढ़कर वहां आ सकते हैं, तो और क्यों नहीं आएंगे हम। तो हम इसको आज ही डायरेक्टर साहब से बात करते हैं। और मुरारी जी, इस चीज को आपको एक बना कर देना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पर प्लान कैसे करना है। हम चाहते हैं कि जो और सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे टॉक विद एक IAS ऑफिसर से होते हैं, तो बच्चों के साथ जो वो रीडिंग की हैं, उनको कैसे उन्होंने अपने जीवन में लाया है, और उसका क्या फीलिंग है, और कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बच्चों के बीच में जाना चाहिए। इससे बड़ा कुछ और मैसेज नहीं जा सकता है बच्चों के बीच में। तो आज जो मैं आया नगर में हूँ, बच्चों से अभी मिलने आऊंगा, मैं वहीं आ रहा हूँ, लेकिन जो आज ये बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया है, मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन जितना मैं सुना है वो वंडरफुल प्रेजेंटेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, रियली में वंडरफुल। और मैं मुरारी जी, आपको, चंदन को, गीता मैडम को जो अभी अभी ज्वाइन की हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन इनको भी दे रहे हैं कि वो प्रिंसिपल के रूप में अभी ज्वाइन की हैं। और कभी यहाँ ये टीचर होती थी, वो जो ऑनरशिप वो दिखेगा, चूंकि ये स्कूल की हैं और इसी स्कूल में वो आगे पहले थी, तो वो ऑनरशिप के साथ इस स्कूल को आगे ले जाएंगे। और बबीता जी जो यहाँ पहले रहे हैं, अभी भी यहाँ हैं वाइस प्रिंसिपल के रूप में, जिन्होंने कि ये पूरे टीम तैयार किए हैं, ये बच्चों के बीच में वो संस्कार और वो टैलेंट दिए हैं।
और सभी को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ और शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आया नगर के बच्चे पूरे दिल्ली को लीड करें, मैं यही कहूँगा। तो मैं थैंक यू शुभकामनाएं के साथ थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। ऑल ऑफ यू। सुमन मैडम, आपने इस प्रोग्राम को चुना। थैंक यू बाबू, थैंक यू। Thank you very much, sir. So I think we will close the session, but before we close the session, it should be closed by the words of Vivekananda itself, and again to the core philosophies. Few, just 3-4 lines I'll read. In whom is the universe? Who is in the universe? Who is the universe? In whom is the soul? Who is in the soul? Who is the soul of man? To know him, and therefore the universe as ourself alone extinguishes all fear, brings an end to misery, and leads to infinite freedom. Wherever there has been expansion in love or progress in well-being of individuals or numbers, it has been through the perception, realization, and the practicalization of the eternal truth. The oneness of all beings. Dependence is misery. Independence is happiness. The Advaita is the only system which gives unto man complete possession of himself and takes off all dependence and associated superstition, thus making us brave to suffer, brave to do, and in the long run to attain to absolute freedom. So I think I found these words of Vivekananda one of the most powerful words, crux of his philosophy of Vedanta that he shared. And so this is the time to say goodbye at this episode of Read with the Students. We will meet next month with another interesting episode with another group of students. So thank you everyone for being a part of this. Thank you.